Let us start. Um, Let me see if the slides will show. Today we've got a very exciting webinar, I hope. Something that's at least very close to my heart and lots of the presenters' heart. This is the third in a series of excluding the poor. My thanks to Omer Gilani and Zia Bande for helping us do this. There's a third in our series, as I said, for excluding the poor. We want to talk about how the poor are excluded from our cities. And one very important aspect is street vending. We will discuss everything, but please, we'll give every one of you a chance to speak, but keep your mics muted until you are ready to speak. Thank you. Today, as I said, we have, thanks to Zia Bande, we've got, and Omer Gilani, we've got a bill that they prepared for street vendors' rights, and we want to discuss that. As I've written many times, when I was young, there were lots of street vendors. They used to come to our houses. They used to sell us churran, and they used to sell us that little sticky thing that they used to make hookahs and cars out of. They used to come and sell fruit in our houses, etc. Then until cars took over. And now I see very important people driving Bentleys and Ferraris, but you can't have Ferrari. You can't mix fruit vendors and Ferraris. So they had to go. The fruit vendors had to go, and I'll tell you about that. So anyway, today we've got a great panel to discuss this issue. And let me talk to you about the panel. We've got Dr. Sania Nishtar, our Minister for Asas. She's going to join us. She's in charge of the poverty program of the government. So she's going to give us a good keynote. We got Zia Bande. Zia Bande is a development consultant and activist and a great proponent, champion of street vendors' rights. We got Omer Gilani, is a lawyer with a heart. Is there such a thing? I've never heard of a lawyer with a heart, but Omer Gilani certainly seems to be bucking the trend. Omer Saab, lawyers are supposed to be heartless creatures, and you have a heart. He actually goes out and champions the causes of poor, disenfranchised people. Maybe because he's young, when he grows up, he'll be a money machine, but let's respect him for what he is. Then you got Naveed Abbasi, the president of the Khoka Association of Islamabad. So there we have a good panel. Let's go to it soon. But I just thought I'd do something to set the debate. If you look at it, this is searching Google terms. And if you see, and I keep saying this, that we don't want growth. We are a country that doesn't want growth. We are a country that doesn't want development. But this is obvious here. This is Pakistan. And we are searching two terms, foreign policy and growth. And as you can see, foreign policy beats growth every time. We want foreign policy. We are searching for foreign policy more than growth. That tells you economic growth. That tells you where we are, right? Economic growth is of less importance to us than foreign policy. Okay. Then here it is. We are searching economic growth and taxation, and you can see how high taxation is. We are a people that wants to tax ourselves, but not grow, not develop. That's another interesting thing to bear in mind. So this shows you our mindset, how we think. We think foreign policy and taxation, economic growth is of less consequence to us, right? Here it is, project. Look at that, project. We search project far more than we search economic growth. Once again, we, ladies and gentlemen, don't want economic growth. Don't let anybody fool you. We don't want economic growth. And I'd ask the minister to comment on this too. Why don't we want economic growth? Why is our country so favored with the status quo? We want status quo all the time without getting economic growth. Now let's come to this. Metro trumps economic growth too. We're all searching metro and not economic growth. So when people tell me we know everything, I tell them this is what you know. That you know nothing about economic growth, you know everything about foreign policy, metro, taxation.
Here is documentation economic growth. We want to document without growth. Now let's come to our subject. Street vending economic growth. Street vending is hardly anybody's interest. And I tried Coca, I tried kiosk. Street vending, nobody searches for. Everybody searches for. The only place economic growth comes out on top is with street vending. Street vending is zero interest in Pakistan. Coca is zero interest, kiosk is zero interest. So there you are, ladies and gentlemen. We are interested in foreign policy, projects, taxation, documentation, metro, but not street vending or economic growth. This is how much we care for the poor. So when they tell us that we are philanthropic, I don't agree. We are philanthropic only in terms of giving charity, not opportunity. Street vending is opportunity, not charity. We like to give charity, not opportunity. Because the street vendor will interfere with my car. How dare he interfere with my car? This is the United States. Look at how much they search street vending. It's not as if people don't. US is searching street vending a lot. This is UK. So it's not as if street vending is not something that researchers and people don't look for. If US and UK are interested in it and we are not, I rest my case. This is Pakistan when I search for it. Says no such term, nobody searched for street vending in Pakistan. So there we are, that's the background. We are just not interested in this subject, but let's go on. I also went through some, not all, obviously I can't. I urge my students and others to try and work on this a little more. We probably can make a paper out of this. I looked at some UN reports. For example, I looked at the Human Development Report. I looked at the World Bank poverty reports. I looked at other things. There was hardly any mention. I think I found one mention of street vending, but it's all activity which is undesirable. So even our donor partners are not interested in street vending. They only are interested in informal activity and they want to get rid of it too. They want to document everything. So nobody's interested in street vending, folks. I don't know why we are taking that. Now, I did Google searches 1990 to now on Google Scholar and various things, trying to find out what work has been done. Hardly anything. Hardly anything. The first mention of street vending that comes is in Framework of Economic Growth, where we are also shy. We didn't push very hard because the government document, we didn't want it to be so. We were very shy because people didn't understand what we were saying then. The Framework of Economic Growth, nobody in government understood. Nobody, when it went to cabinet, they didn't want to spend 2 minutes at it. When it went to the NEC, they didn't want to spend a minute on it. They were so bamboozled because all they know is how to build roads and metros. I'll ask the minister to comment on that. So then we started looking, then I did some more research, and the first mention comes out when I wrote a few papers, these papers that are in front of you. Why we care for cars, no room for Cocas, these on the right. Why not, Cocas everywhere. This is what I wrote in 2014, 17. Then there's one street vending story in Dawn in 2015. Otherwise, there's nothing. So this is our interest in street vending. Then along comes Prime, I think 2017, if I'm not right, or 18, starts a project on street vending. Zia Bande joins them, and Zia Bande now later, fair amount of activism, and then he develops a street law with Omar Gilani, I think. So that's where we are on street vending now. Meanwhile, I remember counting a long time ago when I was doing this in 2014, I think, that Manhattan has 50,000 Cocas, Mexico City 185. These are street vendors in these cities. So why can't Karachi and Lahore have street vendors? That issue puzzles me, and I wrote about that many times. Zia Bande and Prime have picked it up. I'm very happy to see. This also brings me to the point how change happens. Lots of people think that they write a newspaper article and change should happen. No, it doesn't happen that way. Change happens when you have a policy community, when people come together and they work hard to make a change. I remember in Shahbaz, I convinced him in 2013, he agreed with me. We had a number of meetings with Rana Sanalwa, Shahbaz, everybody on street vending. Ahad Chima said, no, it can't be done.
and Shahbaz folded. That's the power of the bureaucrat. The prime minister, current prime minister, I've explained this to him many times, and he agreed before the election, but after the election, it's always a different story. There is no constituency for street vendors until we, the thinkers, have come together and formed a coalition and pushed for it. And coalitions are not formed by trying to win trophies. Coalitions are formed by trying to come together like this and make common ideas and common goals. Unfortunately, that is not our culture. We got a hero culture where everybody wants to be a hero. We don't make communities. So let's see if we can. Now, the demography goes against us. We have 2 million kids coming into the labor force every year, 4% increase in the labor force every year. Everybody who talks about giving them education skills is conning them. Not all of them are going to get jobs. They will have to be self-employed. And that has to be through street vending. So that's why I think as an economist, I would say street vending is absolutely important. I told the Prime Minister before he got elected, let street vending happen in every street. Forget the cars, forget the rush. Let us have millions of street vendors everywhere. Unfortunately, the bureaucracy doesn't want that because their VIP cars are, will be disrupted. There is no future without opportunity. We have to give opportunity. Street vending is an opportunity. Opportunity cannot be controlled and defined by the government. Opportunity needs cities and open environments. This is what we try to say in the framework of economic growth. We are trying to make a new growth framework. Street vending will be a very important part of that framework because that is the only way we can employ the kids that are coming up. If we don't want to employ them, that's a different matter. And I keep coming back to this. Our long run growth is declining. It can pick up if we have street vending. If we don't have street vending, it won't pick up. Our investment is going down, and our investment will pick up if you have street vending. Any kid who invests 1,000 rupees or 10,000 rupees in a street vending operation has made an investment. It's not consumption, it's an investment, and let us have that. But then, this we should never forget. 1950 ad that told us we are walking on crutches of dollars, and people behind us telling us, hey, keep them on those crutches. Ladies and gentlemen, we still remain on crutches. I guess it's internet. Doctor, can you? Hello? Dr. Bim, can you hear us? I guess your internet is facing some issue. Sazia Bande, can you please Hello? जी अस्सलाम वालेकुम बांडे साहब आप शुरू कर दें मजीद गुफ्तगू जितनी देर तक डॉक्टर साहब का कनेक्शन नहीं मिलता Sir, please, you can take over. Acha, I can. Nabil, can you put my presentation over there? Yeah, Ms. Aslan. You Please can run the start it. slides of Zia sir. You can start, sir. We can start. Can you make it a screen, a full screen? Aslan, make it a full screen. Screen. He is doing it. It's done. Thank you. Thank you. Okay, first of all, मैं ये वाली जो अपनी जितनी भी प्रेजेंटेशन है और बात है मैं उर्दू में करूँगा क्योंकि हमारे साथ एक और साहब हैं जो कि स्ट्रीट वेंडर खोखा एसोसिएशन के सदर हैं और जैसे नदीम साहब ने बताया है आप लोगों को कि इसके बारे में कि हम लोगों ने जो काम शुरू किया था मैंने तो उसका थोड़ा सा डिटेल भी बता दूंगा आप लोगों को कि किस तरह ये काम शुरू हुआ है और किस तरह हम इसको आगे लेके चल रहे हैं और हमारा
थोड़ा सा जो फोकस है वो रिसर्च से ज़्यादा मोर एक्शन के ऊपर है कि आपने जो कुछ करना है वो उनको डिलीवरी के ऊपर करना है, इन लोगों के लिए काम करना है। मेरी नेक्स्ट स्लाइड हो जाएगी जी इसके ऊपर। हाँ जी, ये हमने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है ताकि एक स्ट्रक्चर थोड़ी अप्रोच के साथ आप लोगों को चीज़ें बता दी जाएं। इसके 5-6 हैं सेशंस, उसके अंदर डेफिनेशंस हैं, फिर हमने अब तक क्या किया है, उसके अलावा हमारे अंडरलाइंग प्रॉब्लम हमने किस तरह समझी है कि क्या इश्यूज़ हैं, ग्लोबल प्रेसिडेंट्स क्या हैं और स्ट्रेटेजाइजिंग सोल्यूशन हमने किस तरह करना है। अगली स्लाइड पे आ जाइए, डेफिनेशन उससे अगला अगला आ जाइए डेफिनेशन के बाद। देखिए जी, जब आप स्ट्रीट इकोनॉमी की बात करते हैं तो दो मेजर मतलब है कि डेफिनेशन स्ट्रीट वेंडर्स में, एक आ जाती है स्ट्रीट इकोनॉमी और दूसरी आ जाती है पब्लिक स्पेस। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? स्ट्रीट इकोनॉमी तो हम जैसा इसमें लिखा हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज है पब्लिक स्पेस के अंदर। अब ये चाहे एक क्लोज में हो, फिक्स स्पेस में हो या उससे बाहर हो, बेंच के साथ हो, कोई कार्ट के साथ हो, बंदा खड़ा हुआ हो, बंदा बैठा हुआ हो या चल रहा हो या किसी चीज पे फिक्स हो, ये सब चीजें जो स्ट्रीट के ऊपर हो रही हैं, जितनी एक्टिविटीज पब्लिक स्पेस के अंदर, वो स्ट्रीट इकोनॉमी का हिस्सा है। हमारे आम फहम टर्म में इसको आप खोखा वाला कहें, ठेले वाला कहें, छाबड़ी फरोश कहें, ये हमारी वर्निकुलर टर्म्स के अंदर बात की जाती है। अब पब्लिक स्पेस पे आ जाते हैं जी कि पब्लिक स्पेस क्या है जिसको हम डिफाइन करें। तो जी पब्लिक स्पेस वो एरिया या प्लेस है कि जो ओपन है और एक्सेसिबल है सब लोगों के लिए, रिगार्डलेस उनकी ज़ात पात या एज या सोशो इकोनॉमिक लेवल कोई सा भी हो। तो ये वो स्पेस है जिसके अंदर एक प्राइवेट आदमी दूसरे प्राइवेट आदमी को बाहर नहीं कर सकता। ठीक है जी, अगली आ जाइए स्लाइड, जर्नी सो फार, उसे अगली स्लाइड। हाँ जी, ये जैसे नदीम साहब ने आपसे जिक्र किया था तो मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। ये 2019 का है जो हमने इवेंट स्टार्ट किया था। अगर आप ऊपर वाली देखते हैं तो छाबड़ी फरोश असेंबलियां हमने की हैं 5 शहरों में जाके, और इसके बाद हमने उनकी लोगों में से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया था। हम सब्जी मंडी में गए थे, हम बाहर हमने पार्कों के अंदर ये किए थे इवेंट्स, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा के अंदर। उन लोगों से बात की, फिर उनमें से कुछ लोगों को और फिर इंतज़ामिया के लोगों को कंसल्टेशंस के लिए बुलाया, जो कुछ चीज़ें तस्वीरें लगी हुई हैं। हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी 10 मिनट की इनके ऊपर, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, जो हमने इवेंट्स और जिसके अंदर हम एमएनएज और एमपीएस को भी इंगेज किया था। ये भी आपसे जिक्र कर लूँ, इन सारे इवेंट्स में इलाके के एमएनए और एमपीएस भी आए थे, और इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डिप्टी मेयर इस्लामाबाद के ज़िशान अली नकवी साहब। ही वाज काइंड इनफ टू कम, वो भी हमारे उसमें सेशन में आए थे सब्जी मंडी के, और इस्लामाबाद सब्जी मंडी के अंदर जो हमारा सेशन हुआ था। और उसके बाद पिछले साल के अवाखिर में हमने जो ये ड्राफ्ट है, बिल जो है जो हमने बनाया था, वो हमने लॉन्च किया था। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जो बात करेंगे वो करेंगे अहमद बशीर साहब, जो कि हमारे साथ इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। ही वाज बेसिकली अ लॉयर, एक लॉयर हैं, और अहमद बशीर एंड एसोसिएट उनकी कंपनी का नाम है, उसके साथ हैं। तो इस सारे सफ़र के अंदर हमारे साथ जो लोग शामिल रहे थे उसमें नेशनल यूथ असेंबली थी हमारे साथ। ये एक यूथ का प्लेटफॉर्म है जिन्होंने इन लोगों को जमा किया, अपने यूथ को, जिन्होंने ये सारी असेंबलीज वगैरह की हैं यंगस्टर्स ने। अहमद बशीर एसोसिएट थे, उसके साथ प्राइम था, मैं प्राइम में उस वक्त हिस्सा था प्राइम का, तो आई वाज बेसिकली जिसने ये सारा इनिशिएट किया था, और फेडरिक नोमान फाउंडेशन ने इसको फंड किया था। अगली स्लाइड पे आ जाइए। जज इससे साहब अगली हिस्ट्री स्लाइड, के अलावा कुछ और बताएंगे? किसके बारे में सर? हिस्ट्री के अलावा कोई सब्जेक्ट पे भी आ जाए। आगे आ जाए सर, आगे अंडरलाइन आगे आ जाइए। अब देखिए हमने इसको किस तरह, हमारे नज़दीक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें नज़र आया है वो नज़र आया है कि पब्लिक स्पेस को कंटेस्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि हमने जो ये स्लाइड बनाई है स्ट्रीट और स्टेट की, तो स्ट्रीट के जो वजन है वो हल्का है और स्टेट का वजन भारी है। और जो हमें स्ट्रीट के अंदर जो हमें प्रॉब्लम नज़र आई हैं कि जो उन लोगों को है हरेसमेंट का सामना है, ब्राइबरी का सामना है, अविक्शन का सामना है, उनको कोई रिकग्नाइज नहीं कर रहा। स्टेट में अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को लें, जुडिशरी को लें, सिविल सोसाइटी को लें, तो हमें जो वहाँ नज़र आई हैं चीज़ें कि लैक ऑफ एम्पैथी है, लोग कोई हमदर्दी नहीं करते उनके साथ। ज़्यादातर उनके जो पटिशंस हैं वो आप देखें तो वो बाहर हो जाती हैं।
मॉडर्निस्ट सिटीस्केप है। आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की जो रोड्स हैं या पाकिस्तान के जो कमर्शियल एरिया हैं वो कोई हाई एंड किस्म के होने चाहिए हैं, फैशन डिजाइनर किस्म के होने चाहिए, साफ सुथरे, जिसके अंदर गरीब आदमी का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। और फिर लैंड को आप एज ए कमोडिटी ले रहे हैं, मतलब आप इसको एज ए पब्लिक स्पेस नहीं ले रहे, एज ए कमोडिटी ले रहे। तो इसमें जो शहर के अंदर लोग होते हैं उनका भी रवैया यही होता है कि वो जगह देने के लिए तैयार ही नहीं होते स्ट्रीट वेंडर्स के लिए और उसके लिए कि उनको स्पेस दी जाए, उनसे रिक्वेस्ट। और फिर पाकिस्तान के अंदर डिकोटमी भी है। पाकिस्तान के अंदर, जैसे हम इस्लामाबाद के आगे बात भी करेंगे, यहाँ डिकोटमी ये है कि ज़मीन जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के पास है और जो लाइसेंस है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास है। अब अगर म्यूनिसिपैलिटी कुछ देना चाहती है तो उसको पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी अपने डेवलपमेंट अथॉरिटी से। अब ये डिकोटमी आपको दुनिया के बाकी शहरों में नजर नहीं आती। पब्लिक स्पेस म्यूनिसिपैलिटी के ही अंडर होती है और वो ही इसको आगे एडमिनिस्ट्रेट कर रही होती है। तो ये एक आपकी एक बहुत बड़ा रेड टेपिज्म है जिस पे आगे हमारे दोस्त हैं वो इसको हाईलाइट करेंगे। आगे आ जाइए। अच्छा, अब हम जो अपना ये प्रोजेक्ट है उसको देख रहे हैं अर्बनिस्ट आउटलुक के साथ। जाहिर बात है पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, अगर देखा जाए 5 तो हमने इसको अर्बनिस्ट उसके अंदर देखा है। इस वक्त पाकिस्तान की जो ऑफिशियल अर्बन पॉपुलेशन है 2017 के सेंसस के हिसाब से वो है 7,56,00,000। ठीक है जी। पिछले मतलब है कि 18-19 सालों में ये ग्रो किया है एनुअली 2.7% के हिसाब से। अर्बन परसेंटेज ऑफिशियली बनती है 36.4। लेकिन जाहिर बात है डिबेटेबल है कि इतनी है कि नहीं। इस वक्त ऑफिशियली 97 सिटीज पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख या उससे ज्यादा की है। अब पर कैपिटा जीडीपी आपका तकरीबन $1,500 ऑन एवरेज, ये नॉमिनल है। पॉवर्टी रेट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की हम बात कर रहे हैं तो 38.8% है हेड काउंट्स के हिसाब से। लेबर फोर्स जो आपकी अर्बन में हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी नदीम साहब ने भी बात की है, वो है 2,26,00,000। ठीक है जी। और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7.2%। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 1.5% अर्बन पॉपुलेशन लूँ के जो कि स्ट्रीट वेंडर्स अगर कहलाए जाएंगे तो ये पॉपुलेशन तकरीबन अर्बन पॉपुलेशन का ये जो आपकी लेबर फोर्स है इसका अगर आप देखें तो 1.134% बनता है, मिलियन बनता है इसका, यानी 11,34,000। हमने फिलहाल इस्लामाबाद के ऊपर फोकस किया था क्योंकि हमारा टारगेट इस्लामाबाद था। अब इस्लामाबाद की अगर पॉपुलेशन 1998 के हिसाब से देखी जाए तो अर्बन पॉपुलेशन 5,29,000 थी और रूरल पॉपुलेशन अगर आप देखें तो वो 2,76,000 थी। अब 2017 में अर्बन पॉपुलेशन 10 लाख हो गई है लेकिन रूरल पॉपुलेशन भी तकरीबन 10 लाख हो गई है। ये एक अलहदा अनोमली है कि इस्लामाबाद के अंदर रूरल पॉपुलेशन अभी तक उस एरिया को डिक्लेयर किया हुआ है जो हाईली अर्बनाइज्ड है। तो इस्लामाबाद 50% नहीं होगा, ये 80-90% अर्बनाइज्ड है। और जब आप इतने अर्बनाइज्ड एरिया की बात करते हैं तो यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स भी कम से कम 20 से 25,000 स्ट्रीट वेंडर्स होंगे। और मैंने कुछ सर्वे भी किए हैं कि कौन से हॉटस्पॉट्स हैं स्ट्रीट वेंडर्स के इस एरिया में। आगे आइए। देखिए जी, इस्लामाबाद में जो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सर्वे नहीं हुआ हुआ कि स्ट्रीट वेंडर्स की पॉपुलेशन कितनी है। लैक ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स एंगेजमेंट है, ना ही कोई कर रहा है उनके साथ एंगेज वगैरह। हम एक एसोसिएशन को लेकर आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं लेकिन वो आपको अपनी बातें बताएंगे कि उनको कितना मसला होगा। आर्बिट्री गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया है कि अगर लॉ है भी तो लॉ के को डिफाइन नहीं किया हुआ कि किस तरह लाइसेंसेस देने हैं, किस तरह उनके साथ काम करना है। कंटेस्टेड है पब्लिक स्पेस डेफिनेशन, ये भी डिस्क्रेशनरी है कि किस तरह उन्होंने देनी है जगह या नहीं देनी। आगे आइए। ग्लोबल प्रेसिडेंट्स, आगे आ जाइए। देखिए ये कुछ मीथ्स हैं जो हम बेसिकली डिमोलिश करना चाह रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में। इंटरनेशनली भी मतलब है कि ये बात है जी, अंडर रेगुलेटेड होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है जी, इनफॉर्मल, ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया में हमने देखा है इनको काफी रेगुलेट किया जाता है, इनको निकाला जाता है, छोड़ा जाता है। मतलब है स्टेट इनको खुली छुट्टी नहीं दी हुई होती स्टेट ने, अगर कहीं दी हुई भी है तो उसका अपना मकसद है। फिर ये बात आती है कि ये डिजायर करते हैं इनफॉर्मेलिटी, ये फॉर्मल सेक्टर में आना ही नहीं चाहते। ऐसी भी कोई बात नहीं है, इन्होंने कोशिश की लेकिन स्टेट इनको गुंजाइश ही नहीं देती फॉर्मल में आने की।
जिसकी वजह से ये बहुत सारी सहूलतों से महरूम हो जाते हैं। जैसे अगर इनको माइक्रो क्रेडिट, अगर एक्सेस टू फाइनेंस भी चाहिए तो वो भी इनको नहीं मिल रहा होता। फिर ये बात आ जाती, भाई ये टैक्स नहीं देते, ये वो चीज। जितनी चीजें वो ले रहे होते हैं, जितना वो काम मतलब है सामान बाय कर रहे होते हैं, उन सब चीजों पे इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और हम सबको ये पता है कि पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेशन की रेशो कितनी है और इनडायरेक्ट की कितनी है। तो ये इनके ऊपर इल्जाम तराशी करना कि ये वाली बात इस तरह की, वो नहीं है। फिर है इनके ऊपर इल्जाम है जी कॉस्ट कंजेशन कर रहे हैं। अब हमने एक चीज देखी है कि अगर आप इनको इंगेज करें और इनके साथ मिलकर काम करें तो बहुत सारी जगहों पे कंजेशन नहीं, ये पब्लिक गुड मतलब है कि बल्कि क्रिएट कर रहे होते हैं लोगों के लिए। तो कंजेशन के अलावा और बहुत सारे हैं, जिस तरह के अर्बन डिजाइन है हमारे मुल्क के अंदर, वो भी बहुत बड़ा एक, उसमें फॉर्मल सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है। और आप सारा का सारा ब्लेम सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर को या स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं दे सकते। उसके बाद बात आ जाती ग्राइम एंड क्राइम की, कि जी ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं या उन चीजों में होते हैं। देखिए, अगर एक आदमी एक एरिया में कारोबार कर रहा है या वो अपनी चीजें लेकर आ रहा है, तो क्राइम का तकरीबन उतना ही परसेंटेज होगा जितना परसेंटेज एक आम सोसाइटी में होगा। बल्कि रिलेटिवली वो लोग ज्यादा फिक्रमंद होंगे कि हमारे एरिया में इस तरह की चीजें ना हो। और अगर आप उनको इंगेज करें तो बहुत सारी जगहों में हमने देखा है, मुल्कों के अंदर, अफ्रीका के अंदर भी और एशिया में और लैटिन अमेरिका में भी, कि जहाँ क्राइम रेट्स कम हुए, ज्यादा नहीं हुए उनके अंदर, वहां अगर आप इनको इंगेज करते हैं तो ये बहुत अच्छा एक सोर्स होते हैं इंटेलिजेंस का भी। जहां तक सफाई सुथराई का ताल्लुक है, यस, वॉश वाटर की, टॉयलेट्स की और इनकी फैसिलिटेशन अगर स्टेट इनके साथ मिलकर करे तो उस चीज को भी, ये सफाई सुथराई का एक डिवीजन ऑफ लेबर हो सकती है। फिर बात आ जाती है थ्रेट टू रिटेलर्स। ये भी बहुत बड़ा है कि जी के जो रिटेलर्स होते हैं, फॉर्मल रिटेलर्स होते हैं, उनके कारोबार के ऊपर फर्क पड़ता है। देखिए जी, फॉर्मल रिटेलर्स का जहां तक हमने देखा है, इन लोगों की वजह से न्यूयॉर्क में या मैक्सिको में हमने देखा है, या इवन जकार्ता के अंदर भी, कि फुटफॉल इंक्रीज हो जाता है। ये उस जगह पे जहां ये होते हैं वहां फुटफॉल इंक्रीज हो जाता है, कम नहीं होता है। जहां तक कारोबार लेने की ताल्लुक है, अगर आपको ये अंदाजा है कि जो मॉडर्न रिटेल या मॉडर्न कंज्यूमरिज्म है, उसके अंदर मॉल्स का और इनका एक अपना रोल है, जो कि एक डेवलप रोल है। और वो एक बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस आपको ऑफर करते हैं। सिर्फ ये हम देख रहे होते हैं कि इनके पास, अगर आप देखे जाएं तो इनके पास रेंज ऑफ गुड्स कम होता है और इनकी कॉस्ट भी बड़ी दुकानों से और उनसे कम होती है। तो ये बेसिकली उस सेगमेंट को भी हैंडल कर रहे होते हैं जो बड़ी दुकानों को या मॉल्स को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अर्बन फूड सिक्योरिटी में और इसमें भी इनका रोल है। आगे आ जाइए, स्ट्रेटेजाइजिंग सोल्यूशन, अगला जी स्लाइड। देखिए जी, हमने अभी जो नदीम साहब ने हमें इसके अंदर सपोर्ट दी, मतलब जब ये पिछले साल के एंड में हमने ये काम स्टार्ट किया था, नदीम साहब से शेयर किया था, दे सपोर्टेड इनटू अस। फिर हम मिस सानिया निश्तर के पास भी गए थे, दे वर आल्सो। फिर ये एक्चुअली इस चीज़ को आगे बढ़ाना था लेकिन कोविड वगैरह आ गया, बट नाउ वी वांट टू प्रोसीड विद दिस। अच्छा, इसमें जी दो हम चीज़ें देख रहे हैं जिसके ऊपर काम करना है। एक है लॉन्ग टर्म, लॉ मेकिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। हम सबको पता है कि ये ओवरनाइट नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। और इसको डिफाइन करेंगे मेरे कोलीग अहमद बशीर कि वो उसमें क्या क्या चीजें हैं। दूसरा इसका होगा कि जो हम अर्बन प्लानिंग है उसके अंदर स्ट्रीट वेंडर्स को किस तरह पार्ट बनाते हैं उसका। दिस इज ऑल्सो आर टारगेट कि हमने उसका पार्ट बनाना है अर्बन प्लानिंग का। तीस शॉर्ट टर्म में देखिए, ये अब एक लॉन्ग टर्म जो चीज चलेगी, लेकिन आपने शॉर्ट टर्म के अंदर भी तो देखना है ना कि उनकी तो जरूरत आज की है। उनकी जरूरत मतलब है 2 साल या 1 साल के अंदर जो आप काम करेंगे उसका तो फल उनको मिलेंगे, लेकिन उनको जो काम करना है उन्हें आज करना है, कि आज के दौर में वो अपने आप को कैसे हम उनके साथ एंगेज हो सकते हैं। इसमें पाइट जो है, हम उसको देख रहे हैं कि उसका एक रोल है एज ए इंटरमीडियरी इन बिटवीन, कि आप इनकी स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेजमेंट। देखिए, ये तो एक हकीकत है कि स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और स्टेट से जब हमारी मुराद है तो स्टेट से हमारी इधर मुराद है म्यूनिसिपैलिटीज हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, सरकार के जो इदारे हैं, उनके साथ आप इनको कैसे इंगेज करते हैं, आप किस तरह उनको ये रिकग्नाइज करवाते हैं
देखिए ये चीज़ हमने अच्छी तरह देखी है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनकी हैंड होल्डिंग किसी ने करनी है, उनका हाथ किसी ने पकड़ना है और ये चीज़ ऊपर तक लोगों के पास लेके जानी है कि किस तरह ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अर्बन इकोनॉमी को, ठीक है? और ये अर्बन एस्थेटिक्स को या अर्बन जैसे कहना चाहिए लाइवलीहुड में कितना अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो पाइट जो है वो अगर इस तरह का एक, और हमें इनको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है स्ट्रीट वेंडर्स को। इस्लामाबाद में जैसे एक होका एसोसिएशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, इनकी मेंबरशिप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। अभी जब मेरी बात भी हुई थी इनसे, नवीद अब्बासी साहब से जो बात करेंगे इसके ऊपर, तो उनके पास 500 मेंबर हैं जो कि वो कह रहे हैं ऑफिशियल हैं। और अगर आप देखा जाए तो इस्लामाबाद में 500 स्ट्रीट वेंडर्स तो नहीं है। मैं सब्जी मंडी के एरिया में जहां मैंने किया था, सिर्फ सब्जी मंडी के एरिया के अंदर तकरीबन 5000 स्ट्रीट वेंडर्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब आप सोच लें कि इस शहर के अंदर स्कोप कितना है काम का। मैं एक शहर की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर कि स्कोप कितना बड़ा है। तो ये जो चीजें हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म में, कि अगर हम इनको साथ में इंगेज करें, इनको ऑर्गेनाइज करें और इनकी आवाज आगे तक लेके जाएं, तो जब तक लॉ बनता है ये दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रही होंगी, हमारे इनिशिएटिव्स वगैरह दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे कि कल जब लॉ बन भी जाता है तो उसके बाद भी जो बहुत सारा काम है हम पहले से कर चुके होंगे, तो उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमें आसानी होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड डॉक्टर साहब, ये टोटल मैंने बात आपसे बशीर करनी साहब, थी। आप जरा लॉ तो हमें बताएं, दैट्स व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। एक्टिविज्म तो लॉ बताइए, और ये भी बताइए अहमद बशीर साहब, हमें लॉ की जरूरत क्यों है? Why should it not be a local issue? Why should it not be an issue for Lahore, Karachi, Islamabad, Sindh, etc. people to do? Do we need a federal law? What do we need? शुक्रिया नदीम साहब, थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये कि आई एम रियली थैंकफुल टू पाइट फॉर हैविंग दिस वेबिनार, क्योंकि हम काफ़ी कोविड की वजह से भी अदरवाइज उम्मीद छोड़ चुके थे। कमिंग स्ट्रेट टू योर क्वेश्चन के ज़रूरत क्यों पड़ी है? ज़रूरत ज़रूर इसलिए पड़ी है कि जब हम इस पे बुनियादी काम कर रहे थे हर शहर में जाके, इस्लामाबाद पहला था, उसके बाद पेशावर, कराची, क्वेटा, लाहौर, वहाँ जो मसाइल थे वो सारे के सारे कॉमन हैं। और स्ट्रीट वेंडिंग चूंकि रिकग्नाइज नहीं है कहीं पर एज अ प्रोफेशन, कहीं भी रिकग्नाइज नहीं है। जो इस वक्त कवानीन है, मैं इस्लामाबाद की स्टेट बात करूं अगर, तो इस्लामाबाद में जो म्यूनिसिपल लॉज हैं, जो बाय लॉज हैं, उसमें जिक्र है, जो लोकल गवर्नमेंट का 2015 का कानून आया उसमें जिक्र है, लेकिन टोटल जिक्र ये है कि लाइसेंस जारी होना है। लाइसेंस के बगैर आप ये काम कर नहीं सकते, किसी को छावड़ी पे चीज बेच नहीं सकते। दूसरी चीज ये कि अगर वायलेशन हुई तो उसकी पेनल्टीज क्या हैं, सजा क्या होगी, जुर्माना कितना होगा। इसके अलावा हुकूक कोई किसी किस्म के नहीं है। फैसिलिटी, सहूलियात किसी भी जगह पे क्या होंगी, इनकी नहीं होंगी, उसका कोई जिक्र नहीं, सिर्फ फ़राइज़ इसमें मौजूद हैं और सजाएं मौजूद हैं। तो लिहाजा ज़रूरत ये महसूस हमने की कि कानून एक होना चाहिए जिसमें कि ये लिखा हो कि स्ट्रीट वेंडिंग को कुछ तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, किसी छावड़ी फरोश को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। रेगुलेट उसको बेशक कर लिया जाए, वो ज़रूर किया जाए, ताकि ना ही इन छावड़ी फरोशों को कोई मसला हो, ना ही आम लोगों को इनसे कोई मसला हो। तो और उसकी वजह यह है कि जो बड़े अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे जो कंजेशन ट्रैफिक की और बाकी होती चली जा रही है, तो उसकी वजह से कुछ मसाइल, काफ़ी मसाइल पड़ते हैं, लेकिन उसको रेगुलेट किया जा सकता है। वो इतना बड़ा ऐसा इशू नहीं है जिसको कि रिजॉल्व न किया जा सके। तो लिहाजा कानून की ज़रूरत तो इसलिए है। जहाँ अभी मैंने बताया कि बाय लॉज में हैं जिसको हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में कहीं कहीं इनका जिक्र है, लेकिन इट डज नॉट गिव यू अ राइट। वो हुकूक वहां से नहीं मिलते, वो सिर्फ मामूली सी रेगुलेशन है, और वो भी सिर्फ इस हद तक है कि जुर्माना कितना करना है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सोचा कि कानून एक होना चाहिए जिसमें कि इन हकूक का देखा जाए, हकूक के तौर पे ये इस्टेब्लिश हो, रिकग्निशन हो इस राइट की। दूसरी अहम बात कि जब तक इनकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज नहीं बनेंगी जो इन्हीं छावड़ी फरोशों को, रेडी बानों को इनकी सही तौर से रिप्रेजेंटेशन कर सकें, तब तक कोई इनका फसाने हाल नहीं होगा। उसके बाद सबसे अहम चीज ये, इन दोनों चीजों की जरूरत क्यों है, रिकग्निशन ऑफ राइट और रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज की, वो इसलिए कि जो मेल ट्रीटमेंट है और हैरेसमेंट है
जो इस्तेसाल किया जाता है बदकिस्मती से रियासती इदारों की तरफ से, उससे भी बचाव के लिए एक चीज जरूरी है। स्ट्रीट वेंडर को, छावड़ी फरोश को, रेडी वाले को हुकूमत से बहुत ही कम होगा कि कोई कर्ज भी चाहिए हो या उधार चाहिए हो, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ज्यादातर लोगों का कहना यह था इन 5 शहरों में, सूबाई दारुल हुकूमतों में और उसके अलावा इस्लामाबाद में, कि सिर्फ थोड़ी सी आज़ादी चाहिए, थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ किस चीज़ से, कि चाहे कोई भी मामला हो, छोटा या बड़ा, या कोई कसूर किसी का ना भी हो, सिर्फ अगर कोई वीआईपी मूवमेंट हो या कोई ऐसा इशू हो मिलता जुलता, तो पहला काम ये किया जाता है कि रेडी वाला या छावड़ी वाले की छावड़ी उठा के फेंक दी जाती, वो उठाकर ले जाते हैं। उसके ऊपर जो सामान पड़ा है, कोई बहुत ही खुशकिस्मत हो अगर वो उसे 50% वापस मिल जाए। तो इस चीज से तहफ़्फ़ुज़, और जो नुकसान ऐसे किसी साहब को पहुंचे रियासती इदारे की तरफ से, किसी भी तरफ से, तो उसके लिए मुआवजा उनको कम से कम दिया जाना चाहिए। और आखिरी चीज ये कि जो इनकी वेलफेयर इन जनरल, आमतौर से भी इनकी फलाह बहबूद के लिए कोई ना कोई इदारे ऐसे होने चाहिए कि जो कि काम कर सकें। जो इस कानून के का जो मुसवदा अभी आप लोगों के सामने है, सपोज के आप लोगों के पास होगा, उसमें जो इसकी तारीफ की गई है, जो डेफिनेशन रखी गई है, वो इसको काफी डिस्क्राइब कर दें, सबके पास नहीं है। उसके माफी चाहता हूँ, परहैप्स इट कैन बी मेड अवेलेबल। पर आप अभी हमें उसका ब्रीफ समरी तो दे दें। हाँ, मैं ब्रीफली मैं समरी बता देता हूँ कि बुनियादी बातें उसमें कानून में क्या हैं, उस पर मैं कुछ अर्ज कर देता हूँ। एक तो हमने इसकी डेफिनेशन बहुत ही ब्रॉड रखी कि कोई भी साहब जो बेच रहे हों, कोई चीज़ें हों या इवन सर्विसेज भी हों, इस तरह आपने बहुत खूबसूरत तरीके से पुराने वक्तों का बताया कि छावड़ी फरोश होते थे या साइकिल पे चीज़ें लोग बेच रहे होते थे। वो सिर्फ चीज़ें नहीं बेचते थे, उसके अलावा बहुत सी सहूलियात थी, प्लम्बिंग हो गई या उसके अलावा हो गई, या बर्तन कली करने वाले हो गए, वो तमाम के तमाम इसमें शामिल हों। वो लोग भी शामिल हों जिनका कोई जो कोई आर्जी तौर पे कोई खोखा वगैरह बनाते हैं, वो भी इसमें शामिल होने चाहिए। फिर हमने इसका सिलसिला ये रखा कि इस कानून के तहत सबसे पहली चीज तो होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इस वक्त हमें कोई डेटा नहीं मिल सका कि मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कितने छावड़ी फरोश हैं, कितने रेडी बान हैं, और इससे इन चीजों से मुंसलिक कितने लोग हैं, उसका कोई डेटा नहीं है। पहली बात तो है कि इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए ये गलत होगा कि कोई एक दफ्तर बना दिया जाए कि सब लोग वहां जाके अपने आप को रजिस्टर कराएं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन का हमें बड़ा अच्छा मॉडल नादरा का देख चुके हैं कि नादरा जब बनी तो वो लोगों के पास गई उनके शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए। तो ये एक चीज है जो कि की जा सकती है। स्पेशली इस केस में इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि खास सेंटर्स हैं जहां हम देख सकते हैं कि छापड़ी फरोश या रेडी बान मौजूद होते हैं। सब्जी मंडी हो गई, जहाँ पे एक सेंटर सब्जी मंडी हो गई इस्लामाबाद की, जहाँ पे हमने इस्लामाबाद वाला प्रोग्राम अपना किया था। तो पहला कदम हो गया रजिस्ट्रेशन। उसके बाद दूसरी चीज आती है, हमने कहा कि एक छोटी सतह पे एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई जाए, जिसमें के सरबराही उसकी मेयर साहब के पास हो सकती है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, क्योंकि हमारे जहन में ये था कि एक इलेक्टेड आदमी होना चाहिए जो लोगों के वोट से इलेक्ट होकर आए, ताकि वो ज्यादा हसास हो इस मामले में कि इनके हकूक के लिए कुछ करना चाहिए, इनका तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। अच्छा, एक तो सरबराही हो गई मेयर साहब के पास मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के। दूसरा, उसमें 50% जो नुमाइंदगी है वो छावड़ी फरोशों और रेडी बानों की ही होनी चाहिए, जिनको के लोग खुद चुने। तीसरी चीज, कुछ एनजीओज हो गई या किसी खास कम्युनिटी की अपनी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, 10% हिस्सा उनका। और उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट है, सीडीए हो गई, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस। सबसे ज्यादा मसला हमने ये देखा कि जहाँ टकराव होता है वो होता है इन्हीं रेडी बानों के बीच में। रेडी बान एक तरफ और दूसरी तरफ पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और म्यूनिसिपैलिटी के जो इदारे होते हैं उनमें। तो लिहाजा जरूरत हमने इस चीज की समझी कि इन्हीं को एक मेज पे रखा जाए, बिठाया जाए, और उसके बाद ये तमाम मामलात को खुद बैठ के तय करें। अब मैं सीधा आ जाता हूँ कि ये जो टाउन वेंडिंग कमेटी जो हमने प्रपोज की है इस कानून में,
उसके मकासद क्या होंगे? पहली चीज कि वो सर्वे करें तमाम रेडीबानों चावड़ी फरोशों का। दूसरा, उनके पास इख्तियार हो कि वो जो ये इजाजतनामे हैं चीजें बेचने के, वो इशू भी करें, कैंसिल भी करें, सस्पेंड करना हो वो भी करें, रिन्यूअल जो उसका है तजदीद उसकी वो भी करें। फिर पहले वेंडिंग के लिए, इन चीज़ों के बेचने के लिए अलग जोन्स बनाए जाएं खास तौर से, उसकी डिमार्केशन भी करें और उसकी एलोकेशन भी यही वेंडिंग कमेटी करे। फिर अर्ज कर दूं कि इसमें जरूर सिर्फ छावड़ी फरोश नहीं होंगे, इसमें बाकी लोग भी होंगे, वो बैठ के बात कर सकते हैं, ताकि अगर पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को और कोई मसाइल हैं तो वो उसी में ही अपना नुक्ता नजर बयान करें और सब मिल बैठ के डिसाइड करें, फैसला करें कि किस तरह से जोन्स होने चाहिए और किस तरह से इनकी बाकी जो रेडीबान हजरात हैं वो कहाँ कहाँ ठहर सकते हैं, क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं। अगर किसी हवाले से कोई रीलोकेशन का कोई बनाया जाता है मंसूबा कि एक जगह के कुछ रेडीबान हजरात जो है उनको दूसरी जगह कर दिया जाए, उसके लिए भी बाकायदा एक मंसूबा यही लोग बना सकें और बगैर किसी को आजिज किए, बगैर कोई बजाय इसके कि कोई और सहूलतें उठाएं, आराम से ये चीज तय पाए और कर सकें। अगर इन इदारों और रेडीबानों के बीच में कोई झगड़े पैदा होते हैं तो उसको भी रिड्रेस ये टाउन वेंडिंग कमेटी कर सके। एक हमने खास चीज इसमें ये रखी थी कि इस किस्म का अगर कोई कमेटी बने तो वो ये भी कर सकती है कि कल को कोई मुकदमात हों तो उसके लिए बार एसोसिएशंस मौजूद हैं, या उनसे रब्ता कर सकते हैं कि जो नौजवान वकील आते हैं या सीनियर वकील हों तो बहुत अच्छी बात है, वो इनके मुकदमात कर सकें, प्रोबोनो बेसिस पे कर सकें बगैर किसी मुआवजे के। और ये चीज़ें पहले भी बार एसोसिएशंस मुख्तलिफ हवाले से करती रही। अच्छा, एक अहम चीज़ सबसे ज़्यादा जिसको मैं अहमियत देता हूँ इस कानून में, वो ये है कि इसके सेक्शन 6 में हमने ये चीज़ डाली कि किसी भी इदारे के किसी भी फर्द के लिए ये गैर कानूनी होगा कि वो जबरी तौर पर रेडी उठा कर ले जाए या उस पर पड़ा हुआ सामान ले जाए। पहले मैंने मुंतकली की बात की, रीलोकेशन की। अगर कोई रीलोकेशन कहीं पे जरूरी है कि एक साहब को किसी और जगह मुंतकिल करना है एक जोन से दूसरे में, या कोई गैर कानूनी हरकत कर रहा है, या उनको कोई स्ट्रीट वेंडिंग का कमेटी, टाउन वेंडिंग कमेटी का कोई हुक्म है उसकी अदूली कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे और मजबूरन उनका सामान ले लिया जाता है, तो उस सूरत में भी उनको बाकायदा पहले नोटिस दिया जाए। अगर एक काम अर्जेंटली भी करना है तो उस सूरत में भी जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जो कि ईटेबल्स हो गए, सब्जी फ्रूट वगैरह हो गया, उसके बराबर का मुआवजा उन साहब को दिया जाए। जो जो चीज उठाई जाए वो उनको वापस बाद में की जाए। इस चीज की सजा नहीं दी जा सकती जैसा कि इस वक्त कवानीन में मौजूद है, ये नहीं किया जा सकता। जितनी जगहों पे हमने सेमिनार्स किए वहां मैंने एक बड़ी सिंपल सी, एक सादा सी मिसाल दी और कहा कि देखिए रेडी तो कोई उठाकर ले जाता है, इसी होटल के नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है, जरा कोई उठाकर लेके जाए। ये तबकाती फर्क है, इसको जहां कहीं मुमकिन हो, जहां मिटाया जा सकता है वहां जरूर इसको खत्म कर देना चाहिए। यकीन जानिए ज्यादातर रेडी वालों का कहना यही था, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि अगर 50% सामान भी किसी को वापस मिल जाए तो वो बड़ी बात है। जो चीजें कॉन्फिस्केट की जाती हैं, जब्त की जाती हैं और वापस नहीं की जाती, उसमें उनके वजन के बाट तक मौजूद होते हैं। जितनी जगहों पर अगर आप, हो सकता है कि आपको नजर आए कि कुछ लोग सिर्फ पत्थर रखकर या ईंट के टुकड़े रखकर वजन करके चीज आपको दे रहे होते हैं, उसकी वजह ये होती, ऐसा नहीं है कि उनके पास ये बाट होते ही नहीं है, होते जरूर हैं, लेकिन कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, वो उठा कर ले गए। हाँ, ये एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद के केस में स्पेशली कि इस चीज पे बहुत मसला है कि असल जुरिस्डिक्शन इन पे किसकी है, सीडीए की है या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की है। लेकिन एक चीज में सारे पक्के हैं और वो ये कि अगर कॉन्फिस्केट करना हो, सामान उठाना हो या डिस्प्लेस करना हो स्ट्रीट वेंडर को, उसमें हर किसी की जुरिस्डिक्शन, उसमें लोकल पुलिस की भी है, उसमें एमसीआई की भी है, उसमें सीडीए की भी है। लेकिन ये हमें मालूम नहीं पड़ सका था जब हम सब्जी मंडी गए कि यहाँ की सफाई किसने करनी। वो जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनमें क्योंकि
गल सड़ रहे होते हैं, फल सेहत के बहुत से इश्यूज होते हैं, बहुत से मामलात होते हैं, लेकिन इस चीज पे किसी का कोई क्लैरिटी नहीं थी कि यहाँ सफाई किसने करनी। इस किस्म के अगर ऐसा कोई कमेटी बनती है जिसमें कि स्ट्रीट वेंडर्स को शामिल हो, एक तो ये कि उनमें थोड़ी सी वो भी जिम्मेदारी से इस काम को कर सकेंगे, और दूसरी बात यह है कि वो शायद इदारों को इस चीज पर मजबूर भी कर सकें कि जो काम उन्होंने वैसे भी करना है वो काम करें। सो उसके अलावा बुनियादी चीजें मैंने यही बताएं जो कि हैं, जो किसी साहब को एक जगह से दूसरे जोन में भेजना, मुंतकली या निकाल बाहर करना, उसके हमने बाकायदा तौर पर लिख दी कि उसमें सिर्फ 4 चीजें ऐसी हो सकती हैं, 4 सूरतें ऐसी हो सकती हैं जिसमें कि किसी साहब को उनकी जगह से, उनके जोन से किसी और में भेजा जा सकता है या बिल्कुल ही हटाया जा सकता है। पहली, एक अगर ट्रैफिक के निज़ाम में कोई खलल हो। दूसरा, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो, कोई अनदेखी कुदरती आफात हो। तीसरा, अगर ये आम आवाम के मफाद में हो। और चौथा, अगर ये किसी झाबड़ी फरोश या रेडी बांध के अपने माशी बेहतरी के लिए हो। यानी एक जोन में अगर F11 यहाँ में बैठा हूँ, अगर इसको आप एक जोन समझ लें, अगर यहाँ पे जरूरत से ज्यादा रेडी बान और चावड़ी फरोश हों तो उनकी आमदन कम हो सकती है। लेकिन अगर सब पूरी तमाम चीजों का अहाता किया जाए और कुछ को कहा जाए कि आप F10 में जाकर ठहर जाएं, तो इससे उनका मुनाफा भी थोड़ा बढ़ सकता है। ये चीजें रेडी बांध से ज्यादा शायद उनके साथ मिलके बाकी लोगों को सब भी बैठकर ये बात कर सकते हैं, और जिसमें सबका ज्यादा फायदा हो वो किया जा सकता है। इनको रेगुलेट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इन पर एतराजात किए जाते हैं वो भी दूर किए जा सकते हैं। यानी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो ये कर सकती है कि इनकी जगह मुतय्यन कर सकती है। अगर कोई सफाई नहीं रख रहा उस पे आकर कह सकती है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि बेहतर हो सकती हैं अगर थोड़ा सा कुछ निजाम को थोड़ा वजह किया जाए। लेकिन जैसी सूरत हाल अब है, उसका वाहिद मकसद ये नजर आता है कि जब जी चाहे जिसको जहां से चाहे वो उखाड़ फेंके। यहाँ हालात ये हैं, आप बाकी शहरों को तो छोड़ दें, इस्लामाबाद में जब हम जा रहे थे वहां मैंने एक बोर्ड देखा डिस्पेंसरी का। एक बुजुर्ग रेडी बान वहां मौजूद थे जिनके टखने सूजे हुए थे, तो और उन्होंने दर्द कम करने के लिए घुटनों पर कपड़ा बांध रखा था। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा यहाँ जो डिस्पेंसरी है वहां डॉक्टर होता है? तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि डिस्पेंसरी है। तो यहाँ सेंटर्स भी बन सकते हैं, अगर कमेटी हो वो उसका ख्याल भी रख सकती है, वो आवाज भी उठा सकती है, और यहाँ सहूलियात भी इनको मिल सकती है। इस वक्त कुछ निज़ाम है ही नहीं। इस वक्त अगर CDA और MCI के साहिबान को भी अगर बिठा लें इकट्ठे, तो शायद उनको भी ये क्लैरिटी ना हो कि कहाँ पे उनकी जुरिस्डिक्शन खत्म होती है, कहाँ दूसरे की शुरू होती है। तो का जो कानून है, जो मुसवदा है आपके सामने, उसके बुनियादी खुदखाल यही है जो मैंने बताया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। उमर गिलानी साहब, आप कुछ मजीद कहना चाहेंगे? बट बी शॉर्ट प्लीज, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ इस्लामाबाद के जो खोखे हैं उनके हवाले से एक मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ। वो ये कि ये तासुर लोगों के यहाँ था जब 11 जुलाई 2019 को इस्लामाबाद में एक दिन में 200 खोखे मसमार किए गए। 200 of them were demolished in a single day। और उसके बाद भी वो मामला सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि सरफराज अब्बासी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने और इनकी खोखा एसोसिएशन ने सियासी तौर पे और लीगली मोबिलाइज किया और फिर कुछ अर्सा कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लिया। लेकिन बदकिस्मती से अदालत इस मसले को सही तरह समझ नहीं सकी और उन्होंने इसकी डेमोलिशन को नहीं रोका। और उसके बाद अब रोज़ाना हर 2 हफ्ते बाद कोई ना कोई खोखा इस्लामाबाद में डिमोलिश हो रहा होता है, और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो है वो उसको अपनी एक लॉ एनफोर्समेंट कामयाबी के तौर पर, तमगे के तौर पे सेलिब्रेट करती है।
तो इस्लामाबाद के जो खोखास थे उनके हवाले से मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये लाइसेंस्ड थे। तो ऐसे खोखे पूरे मुल्क में मौजूद हैं और उनकी भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए जो अनलाइसेंस्ड है। लेकिन जो लाइसेंस्ड हैं उनको गिराना तो जो है वो इंतहाई गलत बात है और रूल ऑफ लॉ के भी खिलाफ है। और इस्लामाबाद की जो उसकी एक पूरी 1986 में एक पॉलिसी बनी थी खोखा, उस पॉलिसी का नाम है पॉलिसी रिगार्डिंग लोकेशन ऑफ कैबिन शॉप्स, कियोस्क्स, टी स्टॉल्स एंड टेम्पररी स्ट्रक्चर्स। और ये सीडीए के रिकॉर्ड में आज भी मौजूद है। पॉलिसी मेकर्स के साथ आई वुड बी हैप्पी टू शेयर इट। उसके बाद फिर 2015 में नेशनल असेंबली स्पेशल कमेटी एक बनी थी जिसने खोखों के फेवर में बात की। उसके बाद 28 अगस्त 2017 को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इस्लामाबाद ने भी खोखों के फेवर में बात की। लेकिन हकीकत यह है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद खोखे डिमोलिश हुए और आज भी हो रहे हैं। तो अब आई थिंक क्विकली व्हाट डू आई थिंक इज़ द वे फॉरवर्ड। देखें, मेरे ख्याल से इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आज मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मसले को उठाया, क्योंकि जैसे बांटे साहब कह रहे हैं ये सैकड़ों हज़ारों लोगों का मसला नहीं है। पाकिस्तान में स्ट्रीट वेंडर्स और टेम्पररी स्ट्रक्चर्स यानी कियोस्क्स में जो वेंडर्स हैं दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। पॉसिबली 1% जो इन्होंने फिगर दी है, 1% और मोर। तो इतने अहम मसले पे कभी भी मैंने आज तक कोई सेमिनार नहीं देखा। सो दैट्स वन, वी नीड टू रिकग्नाइज द इशू। टू, आई थिंक जो सबसे आज अगर हम इस मसले पे गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसका मुहर्रिक जो है वो ना मैं हूँ, ना अहमद साहब हैं, ना डॉक्टर नदीम है, वो सरफराज अब्बासी साहब जो खोखा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जो छाबड़ी फरोशों की तंजीम के लोग हैं, मुहर्रिक एक्टिविस्ट, वो लोग हैं। सो वी नीड टू रिकग्नाइज द एग्जिस्टिंग लीडरशिप ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। इनकी हमारे साथ शमूलियत हमारे लिए बायस फ़ख्र है। ये हमारे, देखें, ये भी मुंतखब नुमाइंदे हैं। मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ वो नहीं होते जिन्होंने मोहल्ले से वोट नहीं होते, जिन्होंने किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो स्पेशली जो लार्ज नंबर्स में स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस की एसोसिएशंस के लीडर्स हैं, they are also elected representatives and we need to recognize them. 3, MCI needs to come up with a खोखा policy. ये खोखा पॉलिसी ऑलरेडी प्रपोज हो चुकी है 2016 में, सीडीए की आर्काइव्स में मौजूद है। I have no understanding why they did not follow it, did not officially adopt it. And finally, I think the courts, the judicial system, I think ये बात पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 18 इस बात की यकीन दहानी कराता है कि जो शख्स अपने दस्ते बाजू से रोज़ी कमाना चाहता है, हक हलाल की मजदूरी कराना चाहता है, कोई भी रियासती अफसर उसको नहीं रोक सकता। ये फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हुकूक है। ये स्टैट्यूटरी राइट नहीं है कि मैं रेडी पे सब्जी बेचूं। ये कोई किसी रूल, किसी पॉलिसी के तहत क्रिएट नहीं हुआ। ये हक जो है ये आइन ने दिया है और लॉ या रियासत उसको रेगुलेट कर सकती है, ख़त्म नहीं कर सकती। सो दिस इज अपने दस्ते बाजू से रोज़ी कमाने के हक को जब तक हमारी अदालतें एक बुनियादी हुकूक के दायरे में नहीं गिनेंगी, हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे, ये मसला ख़त्म नहीं होगा। आपका जो टाइटल है सेमिनार का, एक्सक्लूडिंग द पुअर, I appreciate this and I think this is a part of the solution. We need to understand कि अगर इस मुल्क में गरीब लोग, बहुत से लोग गरीब हैं, तो उसकी वजह ये नहीं है कि रियासत ने उनकी फलाह या उनकी इमदाद नहीं की। अगर लोग गरीब हैं तो उसकी वजह ये है कि रियासत ने या तो उनकी ज़रिया मुआश को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया या खुद छीना है। रियासत has the state, people are not poor because the state has not doled out help to them. People are poor in this country. They are in fact they are poor in this country because the state has either not protected their source of livelihood or directly snatched it. तो कहीं रेडी वाला जो है वो उसको रियासत का अफसर खुद छीनता है उससे उसका रोजगार, और कहीं उस रियासत जो है वो उसको इलाके के लोकल चौधरियों के रहमो करम पे छोड़ देती है। आइदर वे उसका नतीजा ये है कि वो अपनी जो वेइंग मशीन है उसका वजन का पार्ट भी, क्योंकि इनसिक्योर है उसकी प्रॉपर्टी, तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाता। और जो आखिरी चीज़ है, दिस इज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन,
I think there's a long term problem here. इससे पहले डॉक्टर नदीम के इसी फोरम पे आज हम रेडी वालों का और खोखे वालों का मसला बयान कर रहे हैं। इससे पहले प्राइवेट स्कूल्स का, गेस्ट हाउसेस का, ब्यूटी पार्लर्स का, जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उन सारों के मसाइल हम बयान कर चुके हैं। तो मेरी नज़र में इसका एक हल ये है कि हम एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाएं, और उसमें मेरा ख्याल है कि अभी तक हमारा कंस्टिट्यूंसी बेस्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें एक मोहल्ले के हिसाब से लोग इलेक्ट होते हैं। बट ये जो मेरा ख्याल है कि जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं जैसे खोखा एसोसिएशन, छापड़ी एसोसिएशन, गेस्ट हाउसेज एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, सो ऑन सो फोर्थ, जो क्रिएटर्स एंड जनरेटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की एसोसिएशंस हैं, उनके जो मेंबर्स हैं उनको भी लोकल गवर्नमेंट की असेंबली में बिठाया जाए ताकि उनके मसाइल जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे उभर भी सकें और उनको एड्रेस भी किया जा सके। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू वेरी मच। बिफोर आई कॉल ऑन द मिनिस्टर, बासी साहब आप जरा जल्दी से बात कर लें ताकि मिनिस्टर साहिबा से हम जरा पूछे। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे इश्यूज उठे हैं तो मिनिस्टर साहिबा फिर जवाब दे सकेंगे। बासी साहब आप क्या पूछना चाहेंगे, बताइए। अब्बासी साहब हैं कि नहीं? अब्बासी साहब, I think we may have lost him in the I think we've process. lost. Then I'll turn to the minister. Minister Sahiba, thank you very much for coming to the webinar. I'd like you to address this issue. Excluding the poor, Minister Sahib, हमारा तो बहुत बड़ा issue है. We think quite frankly, a huge growth pole, a huge opportunity area is missed because we exclude the poor systematically, especially in our cities. Our cities are meant for cars and plots and not the poor. The poor have no opportunities here. So we'd like you to address that. The Prime Minister has mentioned it occasionally, but somehow now we are midway into your government, but nothing seems to be happening in this area. The poor are not included in any way, and the poor just don't need houses. सिर्फ उनको घरों की जरूरत नहीं है, गरीबों को ज़राए माश भी चाहिए, काम भी चाहिए। तो अगर उनको खोखे नहीं देंगे, स्ट्रीट वेंडिंग नहीं देंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे? सिर्फ घर लेके बैठेंगे? आई थिंक दैट्स एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। ओवर टू यू मिनिस्टर साहिबा, सानिया निश्तर साहिबा, प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। Are you able to hear me well? Very well. सबसे पहले तो नदीम अल हक साहब, I want to thank you for convening this very important event. I want to thank PIDE and I want to thank all the experts who've been working on it. I just got to know about the webinar this morning, and despite the short notice, I was very keen to join because this is an opportunity for me to learn, and it's an opportunity for me to forge a very meaningful collaboration with all of you. Because I genuinely believe that when there is a keen government and a passionate policy and passionate, knowledgeable policy community, when you marry the two together, then of course action can be galvanized very quickly. So आपको याद होगा कि हम कोविड से पहले मिले थे। आई थिंक बांडे साहब शायद मुझसे मिलने आए थे, और आपके साथ नदीम 2-3 दफा इस सिलसिले में बात हुई थी। मैंने आपको ये यकीन दिलाया था कि वी आर एक्सट्रीमली कीन टू मूव इन दिस एरिया, और मैंने आपसे ये भी इफ यू रिकॉल नदीम डिस्कस किया था कि हमें this is just the right time to be having this conversation because हमने इस पे कोई policy movement करनी है। So PIDE का इसमें एक analytical lens होना, एक समझ होनी, और आपकी एक constituency available होनी, उस constituency का mobilize होना, experts का background काम करना, advocacy groups को organize करना, policy deep dive करना, evidence table पे लाना is very, very opportune. You recall we had that discussion, and you recall that I then met your colleagues and we charted a way forward. We wanted to move very quickly, but then came COVID.
And from March onwards, aapko malum hai that, our head has been under the water. At least up until the end of October, we were making cash payments. We were trying to resolve all the residual problems. And then over the last couple of weeks, I have really been on a daily basis trying to fast track the National Socioeconomic Survey, because that is now the backbone of the data on which the government will be supporting people, because post-COVID, as you know, we're looking at very different levels of poverty, of deprivation, of loss of livelihood. But this in no way, lessens the importance of what we're discussing. So this morning, when I saw this invitation on my table, I said I must join. I don't think I'm making a keynote speech here, and I don't want to make a keynote speech. I want to discuss a practical way forward, and I want to discuss with you the next steps क्या हैं, किसने क्या करना है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, हम किस तरह, how do we come together, what are the practical nuts and bolts things which will allow us to flesh your legislative draft further, then get a in principle cabinet approval to move it to the CCLC, and from there on it goes to in the parliamentary pipeline. तो मैं आज आपसे बिल्कुल practical बातें करने आई हूँ. I don't think I can add anything to the very substantive technical discussions that we've had. Your colleagues have very eloquently described why street vending is important, what a street economy is, and I think that you very beautifully summarized why there is a need for legislation. I think that was very beautifully summarized. और आपने उर्दू में कहा कि फराइज और सजाएं तो लिखी हुई हैं different frameworks में, मगर जो आज़ादी है, जो हुकूक हैं, जो सहूलियात हैं, जो उनकी representative bodies की जो legal standing है, जो उनका तहफ़्फ़ुज़ है, so I think it was very beautifully summarized. And I completely agree with you, Nadeem, that our cities, our urban structures, our cities are perfect. That's where state capture is imprinted in perfection. The whole system works for the elite. So whatever little we can do to change that is going to be extremely, extremely important. And the present government is through the housing project is trying to push the needle in that direction, and inshallah when we work together and bring forward this legislation and cascade it into implementation, starting with the Federal Capital Territory, this will be a huge stride. So let me come now to the practical part. Now the practical part is that it seems to me that the technical grounds are well prepared, the experts have a draft in front of us, there are advocacy groups well mobilized, and Umar Saab has also outlined the threads of existing policies and norms that he referred to, the 1986 policy, the work of the 2015 Special Committee, the work of the 2017 committee. So whatever threads there are to make a case and to loop them into the new law, I'm assuming you've already done that, but if it hasn't been done, the draft can be updated. But in terms of the way forward, about mujhe bataएं, what help do you need from me? Because from a process perspective, unless I'm missing something, my sense is that we have a broader consultation. We can convene it under the Asas banner. I can ask some government officials to come to the table. I can get some parliamentary, some individuals who will then be the champions in the parliament. I can convene. You can present to them. We can have draft consultations. We can involve CDA. And once the draft is in some shape, then our division can take it to the cabinet to get an in-principle approval, after which it goes to the cabinet committee on legislation. और उसके बाद फिर ये parliamentary pipeline में आ जाएगा. तो मुझे तो यही process समझ आती है. But over to you on how you, what your view is on the way forward.
I think, yeah, I couldn't agree more. I think everybody will side with that. I'll go to the panel to get their views as well. But I think I salute you on your invitation. And I think that's the way to go forward. You have to take the lead. We can only provide you the inputs. So we would be extremely happy to have you take the lead, arrange the meetings or whatever. I mean, ultimately, if you become the champion, I don't think we could ask for more. I think that's very good. Two questions that I'd like to ask you. Okay, एक तो लोकल गवर्नमेंट का हम बड़ा सुनते आ रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बड़े कीन थे local government पे, but local government seems to have slowed down, and local government seems to be a very important part of this. I know there was a law prepared in the Prime Minister's office on local government, and I think that law was passed too, but somehow we are not moving ahead on local government. Number दो, आपने जो हाउसिंग की बात की है आपकी गवर्नमेंट ने, एंड यस ऑफ कोर्स हाउसिंग इज इम्पोर्टेंट, but how is housing related to opportunity? Because quite frankly, wo jo purani baat hai, teach a man to fish and give him a fish. It seems like we are giving him a fish and not teaching him how to earn money. Without street vending, उनको अगर घर दे दिए तो वो तो घर उनके पास रहेंगे नहीं. They'll pretty soon lose them. So how would you react to these 2 points, local government and housing without opportunity? So as far as the local government piece is concerned, when we organize a formal consultation to see where the threads match up and where they don't, we will have stakeholders on the table who will be able to tell us exactly what the progress is in different streams. In any case, we're talking about legislation within the remit of the federal government as a starting point. And as far as your point about housing goes, I completely agree with you that, housing, important as it is not the answer to the livelihood to the livelihood question for the informal sector. So these two policy pieces reinforce each other. They're not mutually exclusive. They reinforce each other, and there should be progress on both fronts. So, quite frankly, I think it is important that we consider street vending as a major part of your platform. And as I mentioned, Shahbaz Sharif agreed with me, tried to do it, but the bureaucracy nixed it. The bureaucracy said, we don't want it. Now, the question again is, unless the politicians are willing to play a strong role in this, इसके अंदर आ जाती हैं चीजें. For example, देखिए थी कि गाड़ियों को हमने कैसे maintain करना है. Another thing that is related to this is, unless we have a car policy, you don't give anything to anybody else, because right now the car is hogging the street space. I can't even walk in cities. I can't bike in cities. I can only drive fast. And unless every city, including New York, has made a policy for cars, we don't even have a policy for cars. तो ये चीजें सारी इंटररिलेटेड हैं. तो इनको हम कैसे टैकल करें अगर के कोई एपेटाइट नहीं गवर्नमेंट में इनको टैकल करने का? So देखिए ना, appetite की जहाँ हम बात कर रहे हैं, you started off by saying that I should champion this and take the lead. The idea is for me to facilitate in the government system. There are champions. We just नाम मुझे भूल गया है, जो अब्बासी साहब जो हैं. So one of your colleagues is very clear that this is championed by people who have associations, who have a stake, who are organized on the ground, and they of course will be the lead. You are the policy constituency helping them craft the norms. And I'm the government person who is trying to navigate it in the government system. So our division is going to move the file. I will be the one fighting in the cabinet. I will be the one, and then we will look at counterpart colleagues in the parliament. 5-6 लोगों को cultivate करेंगे. There is a pro-poor orientation in the government, and I think the biggest champion of this will be the Prime Minister. But when we take such a proposal to him, I'm sure he will be more willing than us. And I think that he has a demonstrated commitment to the cause of the poor with the Panagas, and him identifying himself with Panagas and the Asas and the rest of it. So what I'm trying to say is that each one of us has a certain role to play. But there's a huge transformation that you are calling for. And the street vending is one aspect of the transformation. There may be other pieces, you just referred to several others, and that
our working in this does not preclude us from opening other chapters as well, but let's make a start. I can tell you in all humility that I will be your greatest ally in the government because this is my core area of work. आपने देखा होगा कि हम एहसास को पार्टनरशिप्स के साथ फर्दर कर रहे हैं. कैश पेमेंट्स हमने करनी है, कमर्शियल बैंक्स को कंपेटिटिवली लेके आते हैं, लंगर चलाने हैं. I go to the best meal producing NGO and give them space so that they can run it. You know, we want to do Nashanama program. We go to the World Food Program and pay them to run our program, execute our program for us. So now that we're talking about policy change, it's music to my ears to have a policy community and advocates come together. So let's work together. So keynote or rhetoric के बजाय I thought कि it's good that we talk about the next steps. और मेरे ख्याल में जो next step इसमें बनता है वो एक more formal government consultation का बनता है, where you as experts come and present and we will facilitate and be your allies and will amplify your voice so that there's a wider government buy-in. But I have to warn you that this is a difficult road, because whenever you talk about the rights of the poor, whenever you there is this huge and massive pushback. तो इंशाल्लाह इकट्ठे इसको fight करेंगे. Now, in terms of process, what I'm going to do is to get my secretary. I'll brief him tomorrow. Then we can speak to you, and then we will chart out a process for the next steps. Excellent, excellent. I think that's a very good invitation. I'll go back to the floor and the panel to Dr. Saab, if I may quickly, Naveed Abbasi साहब वापस आ गए हैं. आगे. So if नवीद साहब, आपने मिनिस्टर साहब की बात सुन ली है. आपने सुन लिया हम keen the minister is to make a change and to champion this cause. तो आप बताइए आप हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं और आपकी क्या तासुरात है इस पे, बोलिए. नवीद साहब. Abbasi साहब. अब्बासी साहब काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लें सर. अब्बासी साहब माइक अनम्यूट हो गया. I think उनको समझ नहीं आ रही, कोई और अनम्यूट कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर? बहुत सुन. I think I can do that. सर रिक्वेस्ट भेजिए, उन्हें अनम्यूट पे फिर भी क्लिक करना पड़ेगा. उनको क्लिक करना पड़ेगा. इस तरह करें उमर, आप उनसे बात कर लें. मीनवाइल I'll continue. I'm on it. खुरम साहब बोलिए. खुरम साहब. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी मैंने ये कहना था कि ये वेबिनार बहुत अच्छा जा रहा है और एक बहुत इंटरेस्टिंग है. और इसमें मैंने ये कहना था कि लाइक हमारा जो लिटरेचर है. खुरम साहब अपने आप को. जी सर, sorry. I am a PhD student of finance from Naval, Islamabad, और I'm doing research in corporate governance. So ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है इसका बहुत ही अच्छा एक वेबिनार चल रहा है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है. और बस मैं ये कह रहा था कि रिसर्च से ज़्यादा जो है ना, जो हमारा लिटरेचर जो है उस पर बहुत ज़्यादा मवाद इसमें हमें मिल सकता है. जिस तरह एक पुरानी किताब थी शौकत सिद्दीकी साहब की, एक खुदा की बस्ती, उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें मवाद है, मटेरियल है. हाँ, और अब आगे मैं जो बात करूँगा उसकी स्टेट इकोनॉमी की. लाइक व्हाट आई थिंक इज दैट अगर एक रेगुलेटरी जो है ना एक बॉडी इस तरह की, अगर इस तरह समेडा के इस तरह समेडा है, ठीक है, अगर उस तरह की एक रेगुलेटरी बॉडी एक थ्रू लेजिस्लेशन अगर तश्कील मतलब कि बना दी जा सके, जो कि जो ख़ास जो है ना ये स्ट्रीट वेंडर्स और इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक वर्किंग करे. और सेकेंडली जो एक हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें जिस तरह एक जो बिजनेस कम्युनिटी जो है, ठीक है, उनके लिए एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है उनको उनकी प्रॉब्लम्स को लाइक हेयर करता है वो. अगर सिमिलरली अगर इस तरह की जो स्ट्रीट इकोनॉमी जो है उनके लिए भी एक कोर्ट सिस्टम जो है इस तरह हो सके, जिस like similar to like the appellate tribunal
जो कि इनको इनके लिए खास एक इजी जो है एक्सेस हो। हाँ, यही कोशिश और करेंगे। ठीक ठीक जी, है, और एक थैंक लास्टली हाँ जी बोलिए। सर लास्टली एक ये एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, दे शुड बी लाइक लिंक, जो एक बैरियर जो है, जो एक बिगानगी जो है वो सोसाइटी में, वो खत्म होनी चाहिए। लाइक जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी अच्छी प्रॉपर आपस ठीक में, तो ये नहीं होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक थैंक यू। रजा साहब, रजा अली। रजा साहब, आर यू देयर? जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी, रजा साहब हेलो फेमस अर्बन प्लानर, जी बताइए जी बताइए जी, बताइए। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल हेलो आ रही है, आ रही है जी रजा साहब, आ रही है। जी जी, अच्छा। नदीम साहब, एक तो आपने शुरू में बात की थी, चीफ मिनिस्टर पंजाब का रेफरेंस दिया और एलडीए से बात करने का, तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स पे तो इन चीज़ों को समझाने का तकिया नहीं करना चाहिए। आपने देख ही लिया, प्राइम मिनिस्टर्स हियर आर टू बी डिपोज्ड, टू बी असैसिनेटेड, टू बी अब्यूज्ड। उनको तो कुछ नहीं सब किया जाता, ब्यूरोक्रेसी के आगे वो कोई चीज नहीं है। सो द थिंग इज दैट ये जो आप बात कर रहे थे, कुछ कराची में काम हुआ, विच वाज पब्लिश्ड आल्सो। एक किताब भी आरिफ हसन ने छापी थी 2008 में, स्ट्रीट हॉकर्स की, and since then he has been working on it. On his website there are a number of proposals for both on the planning side, the urban planning side, as well as on the regulatory side, and the support that can be provided through microcredit and other things. So there are, there is a body of work that exists. तो उसको हमें ये losing you. हम उसका फायदा उठा लें, अगर जिस तरह आगे चलना चाहें तो फिर Very good. I take your point. I think Arif Hassan साहब को जरूर include करना next time. I think this is a major oversight on our part. Zia sahab, please note Arif Hassan साहब को, we must include him because he's Raza साहब is right. He's got a good body of work and he's devoted his life to this subject, so he should be there. Ijaz Ahmed Minhas साहब, then I'll go back to the panel. थैंक यू डॉक्टर नदीम उल हक साहब। जी मेरी एक सजेशन है और एक क्वेश्चन है। जी, सजेशन ये है कि कोई ऐसा सेंसस, कोई ऐसा डाटा हमारे पास नहीं है अबाउट स्ट्रीट वेंडर्स जिसकी बेसिस पे इन्फॉर्म डिसीजन लिए जा सके। could you include in the bill idea about census of street vendors, or so that it can be conducted on permanent basis? Number one. Number two, social security rights of street vendors are very important during calamities like COVID, flood, earthquakes, war. इनको भी अपने लेजिस्लेटिव बिल में शामिल करना चाहिए ताकि ये लोग, गरीब लोग, स्ट्रीट वेंडर जो हैं, कैलेमिटीज में इनका माशी सिलसिला चलता रहे अच्छे तरीके से इनकी फैमिलीज का। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Ji. Thank you. Acha Ji, I think we've got a good set of suggestions, but I think I'd like to go back to Zia Bande Saab and to Ahmed Saab, because I think ministers, what the minister said is very important, music to my ears. I'd like to see your thoughts and reactions to what the minister has said so that we can proceed further. Zia Saab. Okay, Ji. थैंक यू नदीम साहब, और वी आर वेरी थैंकफुल जी टू डॉक्टर सानिया निश्तर। और ये उनका जो अप्रोच है, जो रिएक्शन था, वो सिमिलर था, जो अगर आपको याद है कि हम मार्च में उनसे मिले थे जब मैं और आप उनके पास गए थे। एट दैट टाइम शी वाज आल्सो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर कोविड हो गया और ये सब चीज़ें हुई। यस, अब प्रोसीड करेंगे जी एज फास्ट एज पॉसिबल, जैसे मिनिस्टर साहिबा कह रही हैं। और हमें पता है कि ब्यूरोक्रेसी जितनी भी स्ट्रांग हो, आप या जितना भी आपका रेजिस्ट करे,
हमें तो कोलेशन बनानी है और जगह बनानी है, और उसके अंदर पॉलिटिशियंस और ये टेक्नोक्रेट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अगर सानिया साहिबा का है तो हम उन्हें बुनियादी तौर पे एविडेंस बेस्ड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पाइड, और ताकि वो एक केस प्रॉपर बना जाए। और दूसरी साइड पे जो एक्टिविज्म की बात है, ऑब्वियसली जैसे आदिल ने भी जैसे उमर ने भी बात की है, तो हम वी आर गोइंग टू इंगेज इन लोगों को जो अब्बासी साहब और इस टाइप के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको लेकर आएंगे। तो इट मींस के एक ये लॉन्ग टर्म होगा। और मैं डॉक्टर सानिया से ये भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो हमारा शॉर्ट टर्म मतलब है एंगेजमेंट है, जो कि हम एहसास प्रोग्राम के अंदर जो एग्जिस्टिंग उनके हैं उसके अंदर हम किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इनकी एंगेजमेंट को, स्ट्रीट वेंडर्स की। और स्पेशली मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खोखा एसोसिएशन, दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द दिस एहसास का एक हिस्सा होना चाहिए। और अब जब वो हिस्सा होंगे तो इट मींस कि उनकी बात जो है वो आगे आएगी। तो हमने 2 pronged स्ट्रेटजी पे चलना है, एक लॉन्ग टर्म जिसमें वो हमें एंगेज करेंगी पॉलिटिशियंस को, पार्लियामेंटेरियंस को, और दूसरा है जो ऑन ग्राउंड हम उनके साथ मिलके काम करेंगे इन ऑर्डर टू हैव ऑर्गेनाइज करना है, और जो विद इन द गवर्नमेंट सिस्टम खोखा एसोसिएशंस को बुनियादी तौर पे उन तक पहुंचाना है लोगों को। दे विल बी 2। नवीद अब्बासी साहब, मेरा ख्याल अब आपका माइक खुल गया है। अब्बासी साहब बोलिए जरा आप, बिकॉज यू आपके लिए तो ये सब कुछ हो रहा है, तो बताइए। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमेशा बड़ी शफकत का मुजाहरा किया है, मैं आपका बड़ा ममनून हूँ। तो गुजारिशात तो हमने पहले भी की थी, आज भी उमर साहब ने हमारी तरफ से बात कर दी है। हमारा ये सिलसिला 1960-70 के अशरे से जारी है। उस वक्त जब दारुल हुकूमत बन रहा था तो यहाँ चूँकि कच्चे कैबिन बने हुए थे, और इनको मुतबादल के तौर पर बाद में 79-86 में पॉलिसियाँ बनाई गई थी कि इनको मुतबादल पुख्ता क्यास बनाकर दिए जाएंगे। बाद में अनफॉर्चुनेटली 2013-15 में फिर ये इनको डिमॉलिश करने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो एक दफ़ा उसमें हमने एहतजाज भी किया पार्लियामेंट में कि दोनों ऐवानों में ये मामला उठाया गया। 2017-18 में बहाल हुए और 19 में दोबारा फिर एक दफ़ा हमारे खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। और वो जो पहले बात हो रही थी, कोई एक अदारा ऑपरेशन नहीं कर रहा था, बल्कि 3 अदारे थे, एनवायरनमेंट, एनफोर्समेंट, डीएमए, उसमें एमसीआई और सीडीए दोनों शामिल थी। तो एक दफ़ा फिर हमने एहतजाज भी किया और अपनी बात ऐवान तक पहुँचाई। तो आज के इस प्रोग्राम में चूँकि मिनिस्टर साहिबा भी मौजूद हैं, तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वफाकी काबीना में इस मामले को 2 दफ़ा उठाया, और 2 दफ़ा काबीना ने सीडीए को हिदायत की कि इन लोगों को ये जो इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड खोखे हैं 485, इनको गिराया ना जाए, और जो गिराए उन्हें फौरी तौर पर मुतबादल जगह दी जाए। लेकिन वो जो पहले सब दोस्तों ने बात की है कि चूँकि इसमें बहुत लेट हुई और ब्यूरोक्रेसी की वजह से ये काफ़ी मामला लेट हुआ। अभी पिछले इसी 9 तारीख को सीडीए बोर्ड ने अप्रूवल तो दी है, लेकिन उसमें भी ये कहा गया है कि जी ये ईच 1 बाय 1 करके डीएमए भेजेगा प्लानिंग को, और वो इनको देखेंगे। तो ये लोग चूँकि बाहर पड़े, इनके जो क्यास थे वो डिमॉलिश कर दिए गए थे। अभी जो काम अगर करना चाहे तो वो 2 दिन का है। सीडीए के जो मुतल्लिका डायरेक्टरेट है, प्लानिंग विंग और डीएमए एमसीआई का हिस्सा है, वो दोनों अगर सर्वे करें और हम भी उनके साथ हों, तो ये 2 दिनों में हम मसला हल कर सकते हैं और जिन लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन ये बड़ा लंबा टाइम हो रहा है, कोई काफ़ी अरसे से हम भी जदोजहद कर रहे हैं, सुबह से शाम तक इस मामले में लगे रहते हैं। तो मैं आपके तवसत से मोहतरमा मिनिस्टर साहिबा से ये गुजारिश करूँगा कि चूँकि ये कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर है आपका बहुत लंबा टाइम हो गया है, आपकी बड़ी नवाजिश है कि वो किसी वक़्त दें, हम उनके पास बैठकर अपनी गुज़ारात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अहकामात जारी किए, सीडीए और एमसीआई उनको फॉलो करें और उन पर अमल दरामद करें, ताकि ये जो हज़ारों लोग हैं, ये कोई 20-25 हज़ार लोग बनते हैं। 4000 ख़ानदान का रोज़गार वाबस्ता था इन खोखों से, और 4000 आदमी, आपको पता है कि अगर हर ख़ानदान में 5-6 आदमी भी हों, तो ये कोई 20-25 हज़ार लोग परेशान हाल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर। तो मेरी गुज़ारिश यही होगी कि जल्द अज़ जल्द इन लोगों को ये बाकायदा मंजूर शुदा थे। सीडीए की एक पॉलिसी बनी थी, वफाकी हुकूमत की हिमायत हासिल थी, और एक रेगुलर तरीके से ये लोग बैठे थे। अपर्दी से ये कोई ना तो कब्जा ग्रुप था और ना इन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया था। सीडीए की बाकायदा इजाज़त के तहत बैठे थे। तो मेहरबानी करके इन्हें जल्द अज़ जल्द रिस्टोर करके इनका रोज़गार बहाल किया जाए। जो भी शराइत होंगी, जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, जितने भी मामला यहाँ डिस्कस हुए सफाई का, मैं ये भी गुजारिश करता चलूँ कि हमारे लोग टैक्स भी देते थे,
बिजली के बिल देते थे, सुई गैस के बिल देते थे, सारे जितने भी कानूनी लवाजमात थे वो पूरे करते थे। कोई गैर कानूनी काम अल्लाह ताला के फजल करम से कभी किसी खोखे वाले के खिलाफ ये जो बात हुई थी कि जी कोई नशावर, ऐसा कभी भी कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सारे लोग अल्लाह ताला के फजल से बड़े, मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमेशा कानून को फॉलो किया है और इंशाल्लाह हम आइंदा भी फॉलो करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। और यही गुजारिश होगी मिनिस्टर साहिबा से। यही आपने बड़ी अच्छी बात की, आप टैक्स भी देते थे। जी बिल्कुल देते थे, जी बिल्कुल देते थे। ये जो इल्जाम लगता है कि आप लोग टैक्स चोरी करते हैं, ये नहीं, ऐसी बात सही। देखिए जी, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि पहले किसी दोस्त से कहा था कि इनडायरेक्ट टैक्स तो सारे ही देते हैं, बाकी रजिस्टर्ड भी इसमें से कई लोग रजिस्टर्ड हैं खोखो में, जो बाकायदा इनकम टैक्स की जो असेसमेंट है वो दाखिल करते हैं सालाना बुनियादों पर। बाकी बिजली के बिलों में भी टैक्स सारे होते हैं। सुई गैस के बिल में तो तकरीबन 20 से 25,000 रुपया महीने का टैक्स होता है, मुख्तलिफ टैक्स मिलाकर। मेरा एक सवाल है नदीम, इफ यू अलाउ। जरूर। सो मुझे इनकी बात से ये समझ आ रही है कि ऑलरेडी भी एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत लोग रजिस्टर्ड हैं। ये जो आपके कुलीग ने भी कहा ना कि 86 की पॉलिसी, 2015 का फ्रेमवर्क, 2017 का फ्रेमवर्क, सो एग्जिस्टिंग भी कोई नॉर्म्स हैं, deficient as they may be, but there is something under which they are, जिसके तहत ये अभी भी रजिस्टर्ड है। ऐसी बात है। जी मैं I'd like to briefly respond। जी मिनिस्टर साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। there is a policy, लेकिन उस पॉलिसी के तहत जो लाइसेंसेस जारी हुए थे, the CDA after a certain while stopped renewing those licenses। ठीक है। तो वो लाइसेंसेस 3-3 साल के लिए जारी होते थे और वो कई लोगों के ऐसे लाइसेंस हैं जो 1992 से शुरू हुए और 4-5-10 दफा भी रिन्यू हुए। बट in 2012-13 onwards there has been a dispute about bureaucracy, again I blame। उन्होंने इसके बारे में एक मेड अप सा डिस्प्यूट बना दिया है कि चूंकि ये खोखे इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में इन्विजिज नहीं थे, इसलिए इवन दो द पॉलिसी created them, the policy itself is dubious and of no legality। So they said कि policy और licenses दोनों अपनी जगह हैं, लेकिन क्योंकि master plan में नहीं है तो इसलिए इनको खत्म कर दें। But that argument is neither legally sound nor is it good public policy। Master plans in nowhere in the world do provide details कि कहाँ खोखा slotted होगा, कहाँ नहीं होगा। So but I'm very happy to present a representation to you on behalf of the association, जिसमें हम legal issues को भी address करेंगे। ठीक है। So there's a clear way forward now because there's a short-term issue also, and we will have to decide whether to address this short-term issue through the legislation or whether to resolve this first and then go the legislative route। So it's a question that we will have to do a deep dive into। Very grateful। इंशाल्लाह हम आपको रिटर्न में भी अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगे ताकि we can take it forward। Good job। मैं इसी वीक we'll send you offline we'll be in touch with you about the next steps। ठीक है। अच्छा जी, अहमद बशीर साहब आप कुछ बताइए। उमर खालिद साहब क्या कह रहे हैं? उमर खालिद साहब, क्विकली गो अहेड। उमर खालिद साहब, are you there? जी अस्सलाम वालेकुम। जी दिस इज़ डॉक्टर उमर। आई एम बेसिकली एन इकोनॉमिस्ट। मैंने गवर्नमेंट के साथ भी काफ़ी सीनियर लेवल पोजीशंस पे काम किया हुआ, एडवाइजरी। आई जस्ट हैड एन ऑब्जर्वेशन एंड आल्सो सम इंफॉर्मेशन टू शेयर फॉर द बेनिफिट फॉर एवरीवन। इसमें जो डेटा सोर्सेज हमारे एग्जिस्टिंग है उसमें भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो इस तरह के स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं जो हो रही हैं। हमारे जो डिफरेंट डेटा सेट्स हैं नेशनल लेवल पे, उसमें हमारा ये जो हाईएस्ट का डेटा सेट है उसको यूज़ करते हुए मैंने रिसेंटली एक अभी रिसर्च पीस किया था जिसमें जो हमारे हाउस होल्ड जो डिफरेंट हैं उनमें जो छोटे बिजनेसेस वो चलाते हैं उसका बाकायदा एक मॉड्यूल मौजूद है जो हाईएस्ट में, उसको आज तक एनालाइज नहीं किया गया। उसमें बेसिकली फिक्स फॉर्म ऑफ बिजनेसेस हैं और जो मोबाइल फॉर्म ऑफ बिजनेसेस हैं उसमें मोबाइल में आपके ज़ाहिर है स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह इस तरह के लोग आ जाएंगे, तो उनका डेटा मौजूद है। एंड जस्ट शेयर सम प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स जो आई हैं, जो मैंने 18-19 का हाईएस्ट डेटा यूज़ किया है उसमें आया है कि जी 8.5 मिलियन इस तरह के छोटे
हाउस होल्ड इस्टेब्लिशमेंट्स जो PBS वर्ड यूज करता है वो फंक्शनल हैं कंट्री में। अब उसमें ये मोबाइल फोन के भी जो स्ट्रीट वेंडर्स हो सकते हैं वो भी होंगे, फिक्स्ड भी होंगे उसमें, बट ये है कि दिस सॉर्ट ऑफ गिव्स यू अ गुड नंबर टू स्टार्ट विद, बिकॉज जब भी कोई आप पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो यू नीड बेसिक numbers to start the debate with. तो I think I just wanted to share this bit with everyone कि ये data available है, section 11M है highest का, जिससे ये data निकल सकता है. Thank you. Thank you. अच्छा जी, अहमद बशीर साहब बताइए आप any last thoughts मिनिस्टर साहब के लिए? जी, पहली बात तो है कि बहुत बहुत शुक्रिया. I mean what she has said is totally music to my ears. और जिस वक्त हम ये इस पे काम कर रहे थे तो हमारा ख्याल ये था कि ट्रेजरी और ऑपोजिशन बेंचेस दोनों तरफ से इस पे बहुत सपोर्ट मिलेगी, और लेट्स होप के ड्राफ्ट अगर आगे चलता है और इसमें बेहतर इनपुट्स आते हैं, इसको मजीद इम्प्रूव किया जाता है तो ज़्यादा बेहतरी हो सकेगी. बीच में एक साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि इसमें डेटा क्योंकि मुस्तकिल बुनियादों पे मेरे ख्याल में कलेक्ट होना चाहिए हर चीज़ का, उसकी प्रोविजन रखी जाए तो उसकी प्रोविजन है. इट ऑल स्टार्ट्स विद द रजिस्ट्रेशन, राइट. और उसके अलावा कि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको कैसे यकीनी बनाया जाए, प्रोटेक्शन कैसे रखी जाए. इसी वजह से टाउन वेंडिंग कमेटी का मॉडल ऐसा है कि इसमें स्ट्रीट वेंडर्स खुद शामिल हों. जब तक लोग खुद अपने चीज़ों पे, अपने हुकूक पे चेक नहीं रखेंगे तब तक उनका कोई बाहर से आके नहीं कर सकता, राइट. और बाकी आई एम रियली थैंकफुल. आई विल बी happy to be of any humble assistance that I can be. Thank you. Inshallah, you will be the champion. You've written the law. We will always check. Just one more thing, if I may add. Ms. Nishtar mentioned के अभी से कोई legislation मौजूद है, कोई चाहे subordinate legislation ही सही, मैं clarify कर दूं कि वो सिर्फ खोखियों के लिए है, केबन्स के लिए, उसके अलावा नहीं है. जो ordeal है वो उस फेरी वाले की है बहुत ज्यादा, जो रोजाना सब्जी मंडी से निकलता है और शहर की तरफ आता है, उसके लिए बहुत सी हिंड्रेंसेस हैं, राइट. तो हम करना आइडियली ये चाहते हैं, मेरा नजरिया है कि इसमें दोनों को शामिल करना चाहिए, चाहे टेम्पररी सेटलमेंट वाले हों जिनका कोई केवन वगैरह हो, और जो मूव करते हों एक जगह से दूसरी जगह, दोनों का बहुत जरूरी है. उन्हें असिस्टेंस वो चीख कर कहते रहे कि हमें नहीं चाहिए, सिर्फ आजादी चाहिए काम करने की, हमें इदारों से और बाकी लोगों से बचा दें, और कुछ नहीं. Thank you. Thank you very much. Minister Sahiba, any last minute thoughts? Basi, thank you. It was, I really want to thank you because ये तो हमारा 90% काम आप कर रहे हैं, so I should be thankful to you for all this wonderful work that you're doing, for the rich technical expertise that you're bringing to the table. जब से मैं गवर्नमेंट आई हूँ आई बिकम अ बिट प्रोसेस ओरिएंटेड कि अब आगे क्या करना है. सो कल नदीमा आपसे मैं आई स्पीक टू यू ऑफलाइन. वी सेट अ टाइम फॉर द नेक्स्ट broader consultation. I get some government people, CDA, some parliamentarians to the table. You can make the same presentation, but with a draft on the table. We'll circulate the draft ahead of time, and then we can take the next steps. Thank you so much, and I'm really very grateful. Minister Sahiba, it's very kind of you to take out the time. Few people do that. I appreciate that you've done this. This is wonderful. And change ऐसे ही आता है, coalition बनानी होती है, and hopefully this coalition will lead to a change with your leadership. But ultimately, you are the politician. You have to lead. We can only provide the technical inputs, and I am glad that you're volunteering to do that. That's wonderful. That's a job of a good politician. Folks, बहुत सारे लोगों ने ये काम किया, बहुत सारे लोगों ने देखे आप क्या क्या इसमें शामिल है, फ्रॉम अपना बशीर साहब टू अब्बासी साहब टू उमर गिलानी साहब टू ज़िया बांदे साहब, एंड इसके पर्दे पीछे भी लोग हैं. फॉर एग्जांपल रज़ा अली साहब ने बड़ी अच्छी बात की, आरिफ हसन साहब ने बड़ा काम किया है, अली सलमान ऑफ प्राइम इंस्टीट्यूट. सो देयर आर टू मेनी पीपल टू रिकग्नाइज, बट this is how change happens. You have to work together, and we will inshallah get together and make this happen under your leadership, Sania Nishtar Sahiba. Thank you very much all folks. Thank you for taking out your time, and thank you for dedicating your efforts to create
opportunities for the poor. We need the poor to have opportunities in this country. They should not just be servants in the household. They should have their own opportunities, and Khokhas will do it. Thank you. All the best. Khuda Hafiz.